as we have studied before these things, and these are the things which are remaining in this class. Am I right? Yes, sir. So here we go. In this class, we have finished with yesterday prepositions, right? Now we are remaining only 2-3 top points in this class, and that's what, a capitalization. Then we are remaining with our intensifiers, writing skills, and then presentation only. And only 3 tenses are remaining more to study much more better here. Okay, so what I was just thinking that what if we go through the capitalization first? Yes, guys. Yes, sir. Would you like to go for capitalization? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So capitalization is completely about writing, how to write in English. Okay, so you don't have to panic about it, that how to go with capitalization and the other things. Just a minute. August, September, October, 2nd November, December, January, March, April. Okay, so we are going to go here for the capitalization today. Okay, a new topic that we are going to have here, and that's what capitalization in English. What do you mean by capitalization? Can you please tell me? Capitalization का मतलब होता क्या है इंग्लिश में? Capitalization क्या होता है? Yes. Who can tell me the capitalization, the meaning of capitalization? Yes, guys. I How think to write. where we used to capital letter. Okay, where to use capital letters in English? Okay. Yes. सर आई थिंक फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहता है और बाकी सब लोअर. Okay, capital. It's not showing. I don't know वाले batch का हुआ है कि नहीं हुआ है. November. Just let me copy it from somewhere else, okay? Because I don't want to waste more time in it. मैं नहीं चाहता हूँ कि जबरदस्ती का इसमें टाइम ज्यादा हमारा जाए. So I'll be just copying from my another batch. So it will be quite helpful for us to just go on with, okay? November. June, November, 2nd November, 3rd August, 21st September. September, October, November. Okay. Yeah, so capitalization is what exactly? Then when to use capital letters and when not to use capital letters in English while writing. Means what ultimately you'll come to know, capitalization is the kind of topic in English. It will show you how to write properly. Not only for the capital letters and small letters, but it will show you that how will you write how will you write English perfectly. For example, when to capitalize letters, when not to capitalize the letters, when to put full stop, when to put comma, and the other punctuation marks also. So you'll come to know exactly capitalization. Yeah, I got it. 10th of December. It's my crazy God. I'm not going to have a nice day. Yeah, I got it, guys. Have a look here. So capitalization that I'm going to share with you from our book first. Then we're going to go ahead with the writing. Okay. Now, first of all, capitalization means what? अब capitalization जो है simple लिखने के बारे में होता है literally पूरा. कि आप लोगों को लिखना कैसे है, इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, बोलना तो लोगों को आता है कुछ को, बट लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड एज यू नो वेल, लिखने की वजह से भी इंग्लिश में मीनिंग पूरे चेंज हो सकते हैं कभी कभी.
कि अभी आप लोग लिख कैसे रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे लिख रहे हैं। आप लोगों ने अगर अगर कोई चीज अगर जैसे गलती से अगर आप लोगों ने कैपिटल का स्मॉल किया, स्मॉल का अगर कैपिटल कर दिया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे हमारे कैपिटलाइजेशन के ऊपर। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, अब कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा मैंने क्यों कहा आप लोगों से पहले भी कि कैपिटलाइजेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्यों है, उसके पीछे वजह ये है कि इफ यू सी कैपिटलाइजेशन जो है वो हम लोगों को सिखाता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम लोगों को लिखना है, ओके अब हम लोगों को लिखना है कुछ, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि लड़के का नाम है जॉन, राइट। अब वो जॉन मैं लिखूंगा कैसे, फर्स्ट लेटर हम लोग हमेशा कैपिटल करते हैं उसका, राइट। लड़के का नाम है जॉन, कैपिटल लिखा मैंने, अगर वही जॉन का जे अगर मैंने अगर स्मॉल किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Yes, sir. बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या Yes, फर्क sir. पड़ेगा? Because क्या of फर्क John is पड़ेगा? name and other one John, where is a use the small J. So it is meaning is toilet, washroom. करेक्ट, द मीनिंग इज व्हाट टॉयलेट, द मीनिंग इज व्हाट वॉशरूम। अगर आप लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो था जॉन, ये तो लड़के का नाम है, क्योंकि लड़के का नाम जब कोई भी हम लोग लिखते हैं, कोई भी चीज को फर्स्ट लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, इट इज अ प्रॉपर नाउन। यस नो, कोई भी लेटर कोई भी वर्ड का अगर हम लोग फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल अगर कर रहे हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि बाबा ये प्रॉपर नाउन है, मतलब ये किसी का नाम है। और वही चीज का एक छोटा सा अगर हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, हमारे यहाँ पे लोगों का एक एटीट्यूड है, चलता है ना, हमारे यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बोलते हैं चलता है ना, अरे चलता है ना, चलता है ना। हमारे यहाँ पे एक छोटा एक एटीट्यूड है हमारे यहाँ पर कि चलता है, लोग बोलते हैं। आपको याद है मैंने आप लोगों को एक सूप का स्टोरी सुनाया था, याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था सूप का। यस, एक भी आंसर नहीं दे रहा, No, sir. No, sir. ध्यान दीजिए प्लीज। हमारे यहाँ पे जो है ना लोगों को एक एटीट्यूड है, चलता है बोल के, चलता है ना, अरे खाली इतना तो है, चलता है। ये जो चलता एटीट्यूड होता है ना बहुत डेंजर होता है ये, रिमेंबर दिस। व्हाई? लेट मी शेयर विथ यू। फॉर एग्जांपल वंस व्हाट हैपेंड, एक मर्तबा की बात है, देयर वाज अ कंपनी एंड दैट कंपनी हैड अ पॉलिसी that whenever they used to hire a general manager for the company, so the CEO of the company used to give the offer letter himself. वो कंपनी का क्या रूल था कि जब कभी भी वो जनरल मैनेजर को हायर करते थे तो कंपनी का सीईओ जो था वो सीईओ खुद उसको अपने हाथ से ऑफर लेटर देता था वो जनरल मैनेजर को, जो नया जनरल मैनेजर होता था। सो वन डे व्हाट हैपेंड, ऑन द स्काइप दे हैड एन इंटरव्यू। स्काइप के ऊपर उन लोगों ने क्या किया, एक इंटरव्यू लिया एक मैनेजर का, एंड दे हायर्ड हिम। अल्टीमेटली उन लोगों ने वो मैनेजर को हायर किया, एंड आफ्टर हायरिंग दैट मैनेजर, द सीईओ ऑफ द कंपनी, द ओनर ऑफ द कंपनी, ही कॉल्ड हिम इन अ रेस्टोरेंट। वो कंपनी के मालिक ने उसको बुलाया रेस्टोरेंट के अंदर। आप लोग को याद आ रहा है मैंने आप लोग को बोला था अगर किसी इंसान को अगर पहचानना है तो उसको पैसे देकर Yes, sir. पहचानो, Yes, sir. खाना खाकर उसी साथ में पहचानो, Yes, sir. और उसके साथ में सफर करके पहचानो। अगर किसी इंसान को अगर पहचानना है तो 3-4 चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1, उसके ड्रेसिंग से कि वो बंदा पहनता क्या है। पॉइंट नंबर 2, उसकी सिग्नेचर से। पॉइंट नंबर 3, उसके साथ में खाना खाकर। खाना का जब खाएंगे आप लोग समझ में आ जाएगा कि बंदा कैसा है, एक नहीं 2-3 बार खाना खाने का। पॉइंट नंबर 4, उसके साथ में ट्रांजैक्शन करके कि वो पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे कर रहा है आपके साथ में, पैसे आपको बराबर मतलब आपसे लेके वापस दे रहा है कि नहीं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में बोला था ये सब चीजें। एंड पॉइंट नंबर 5, ट्रैवल, उसके साथ में ट्रैवल करके, सफर करके कि वो बंदा आप लोगों को साथ में साथ सफर के अंदर आप लोग का मतलब ट्रैवलिंग के अंदर आपका साथ निभाता है कि नहीं निभाता है, आपको सब पूरा एकदम डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। सो सेकंड थिंग इज व्हाट, so that intermeans that owner he called that manager in a restaurant to give that offer letter। उसने उसको एक होटल में बुलाया। और ये चीज मैंने देखा बाहर के देशों में भी कि फॉरेनर लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों के साथ में अगर कभी डील करने के लिए जा रहे हैं ना, वो आपके साथ में पहले खाना खाएंगे, डील को रखेंगे साइड में और आपके पहले साथ में खाना खाएंगे वो लोग, क्योंकि उनका बोलना ऐसा है कि हम लोग पहले खाना खाते हैं, खाने के अंदर देखते हैं if the person had stable manners then only we do the business with him। Why? Because they think that if the person doesn't have table manners, how could he be knowing about the business etiquette। जिस इंसान को खाने की तमीज नहीं है उसको बिजनेस के रूल क्या पता रहेंगे, बिजनेस का एटिकेट कैसे पता रहेगा वो बंदे को, ऐसा उन लोग का कहना है, फॉरेनर्स का, स्पेशली ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स। सो
वो आदमी ने क्या किया, वो ओनर ने वो मैनेजर को बुलाया खाने के लिए। इन अ रेस्टोरेंट दे मेट, हेलो हाय मिला, दे सैट फॉर द लंच, दे ऑर्डर्ड देयर सूप, उन लोगों ने वहां पर सूप ऑर्डर किया इन द स्टार्टर के अंदर, एपेटाइजर में उन लोगों ने सूप ऑर्डर किया। एंड आफ्टर ऑर्डरिंग द सूप केम ऑन द टेबल। सो द ओनर वाज लुकिंग एट द मैनेजर, वो देख ही रहा था वो ओनर मैनेजर को। सो दैट मैनेजर व्हाट ही डिड, he took that salt cellar, उसने क्या किया, सॉल्ट सेलर होता है ना, सॉल्ट शेकर होता है, सॉल्ट सेलर होता है, Yes, sir. उसने उठाया and he started pouring into the soup and he stirred it and started drinking। उसने क्या किया, नमक लिया, सॉल्ट में उसने सॉल्ट लिया और उसने अपने सूप में डालना चालू किया। किसने, वो मैनेजर ने। और उसको घोला, he started stirring it and drunk, और उसको पी गया। ये सब देख रहा था वो ओनर। They had lunch very nicely. At the end, the owner said, "Okay, nice meeting you, gentlemen. My HR team will talk to you. We'll see you later." उसने उसको लेटर नहीं दिया, उसने उसको बोला खाना खाने के बाद में, "Okay, gentlemen, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मेरी HR की टीम आपसे बात करेगी, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में।" इतना बोल के वहां से निकल गया वो। As he went to the company, that owner, as he arrived the company, the HR manager welcomed him. अब जो HR मैनेजर था वो आदमी का, वो कंपनी का, वो जब मालिक जब पहुंचा कंपनी में, he welcomed him and he said that, "Oh sir, congratulations that you have appointed a new general manager for the company." So the owner said that, "I haven't appointed that man." मैंने वो आदमी को अपॉइंट किया ही नहीं, मैंने उसको लेटर देने गया था, ये रहा लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया नहीं मैंने। The HR manager asked him why. The owner said that we went for lunch and I saw something which is really weird and due to that I haven't given him anything. हम लोग लंच के लिए गए थे और वहां पे मैंने एक ऐसी बात देखा जो कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी, जिसकी वजह से मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं मैंने। The HR manager asked him, what is that sir? क्या था वो सर? So that owner said that we went for lunch and we ordered their soup. As the ordered soup came on the table, that manager took the salt cellar and started pouring into the soup and he stirred it and started drinking. उसने बोला कि जैसे सूप आया उसने नमक डाला, घोला और पी गया। So the HR manager said, "So what is that? What is so great in that? And what is so weird in that?" ऐसा क्या अजीब था और कौन सी बहुत भारी बात हो गई इसके अंदर? So the owner said, "Don't you think that this is so weird?" आपको नहीं लगता है कि ये बहुत अजीब बात हो गई? बोले सर क्या अजीब बात है? So the owner said, "If you don't think that this is not the weird thing, then you will be the next to go out of my company." अगर आपको नहीं लगता है कि ये बात अगर अजीब है तो आप नेक्स्ट रहेंगे मेरी कंपनी से किक आउट होने के लिए। बोला सर क्या हुआ क्या ऐसा? He said, मैं ऐसे इंसान को कैसे हायर कर सकता हूं कि उसने सूप को बिना टेस्ट किए उसके अंदर नमक डाला और नमक डाल के उसको घोला। मतलब मैं ऐसे इंसान को मैं मेरी कंपनी में कैसे हायर कर सकता हूं जिसको प्रॉब्लम पता ही नहीं है और डायरेक्टली सोल्यूशन पर जाता है। वो उसको कैसे मालूम था कि उसके अंदर नमक कम है? मालूम था क्या? उसने आया और आते के साथ में उसने नमक डालना चालू किया। अगर उसमें ऑलरेडी नमक ज्यादा होता था तो डबल नमक वाला सूप को उसका बाप पीता था। सोचने वाली बात है ना। उसने बोला मैं ऐसे बंदे को मेरे कंपनी में कैसे ले सकता हूं जिसको यही पता नहीं है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। वो प्रॉब्लम को जाने बिना सोल्यूशन के ऊपर जा रहा है। सिंपल सी बात है। उसने उसको किसके ऊपर जाना? खाने के ऊपर। दिस इज व्हाट मील। ऐसे हम लोग एक इंसान को खाने के ऊपर से पहचान सकते हैं। सिंपल। खाली यही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं टेबल मैनर्स के अंदर, बहुत सारी चीजें आती हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी चीज को कैसा बैठना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। दिस इज व्हाट एटिकेट। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना चलता है ना, ये चलता एटीट्यूड यहाँ पे चलेगा क्या? उसके वो चलता एटीट्यूड की वजह से उसके लिए No, कितनी sir. बड़ी जॉब चली गई, कितनी बड़ी जॉब चली गई उसके हाथ से। और ऐसा काम वही करते हैं जो सबसे बड़ी जॉब देते हैं ना, सबसे मस्त तगड़ी पगार देते हैं ना, वो लोग ऐसे चेक करते हैं बंदे को। और जो ऐसे टाइम पास में पगार दे रहा रहेगा ना, वो चेक नहीं करते ज्यादा, बोलते छोड़ना जान देना। सो ऐसे चेक करते हैं उन लोग। उसने बोला यार मैं ऐसे बंदे को कैसे ले सकता हूँ जिसको प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, जो प्रॉब्लम जानता ही नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन लेता है। हमारे यहाँ पे आजकल होता है ना,
हमको हमारे यहाँ पर होता है डायरेक्टली, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आरिफ ने बोला आसमा को, हेलो आसमा तेरे अब्बा को ना ऐसे गाली दिया, क्या बात कर रहा, हेलो तूने मेरे अब्बा को ऐसे गाली दिया, तेरी तो ऐसे, बस उठा के उसको दे बोलना चालू। वहां पे पता ही नहीं है किसने किसको क्या बोला। अब आसमा को सच में बोला कि नहीं बोला, आरिफ सच्चा है कि झूठा है, किसी ने पूछा ही नहीं, डायरेक्ट उठा के आसमा ने क्या किया, सामने वाले पे बरस गई। अरे ऐसे था ही नहीं, पहले प्रॉब्लम को देखो उसके बाद में सोल्यूशन पे जाओ। इज दैट क्लियर? सो एक छोटी सी Yes, गलती sir. बहुत भारी पड़ सकती है। सो चलता एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता है अपने इंडिया में। चलता वो गाय छापा खाने वाले लोग बोलते हैं ना, उन लोग के ऊपर सूट करता, वो चलता, वो विमल खाने वाले लोगों पे चलता, पर अपने ऐसे पढ़े लिखे लोगों पे चलता एटीट्यूड सूट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेट्स गो Yes, sir. now. So this is what the story, and you are going to share this story with your generation or with your contacts, with your friends, so it will help you a lot, at least to learn and to show someone else too. So अब जैसे कि यहाँ पर एक जॉन है, जॉन का जे मैंने कैपिटल किया था, वही जॉन का जे अगर मैंने स्मॉल किया, the meaning will change. ये जॉन का मतलब होता है लड़के का नाम, और ये जॉन का मतलब होता है टॉयलेट। सेम केस जैक, लड़के का नाम है जैक, जैक का जे कैपिटल होता है, अगर वही जैक का जे अगर मैंने स्मॉल किया तो गाड़ी उठाते मालूम है जैक के Animal. ऊपर, जैक के ऊपर गाड़ी उठाते मालूम है क्या, Yes, sir. 4 व्हीलर, ये वो Yes, वाला sir. जैक हो जाएगा। सेम केस लड़के का नाम है राम, RAM, RAM, और एक होता है कंप्यूटर की रैम, RAM, दिख रहा है आप लोगों को? तो Yes, वहां sir. पर सेम स्पेलिंग है, RAM, RAM, RAM। इफ यू सी हियर राम, ओनली द फर्स्ट लेटर कैपिटल, इट्स अ प्रॉपर नाउन, लड़के का नाम है, ऑल द लेटर्स आर स्मॉल, इट्स अ कॉमन नाउन। जानवर का नाम है रैम, मतलब मेंढा, यड़का, और ये होता है सब कैपिटल में, इट्स एन एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं। दैट्स व्हाट रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की रैम, मोबाइल की रैम। आपके बॉस का नाम था राम, आप लोगों को लिखना चाहिए था ऐसा, आप लोगों ने शादी के कार्ड पे लिख दिया ऐसा, मतलब क्या हो जाएगा, मेंढे तू भी शादी को आओ। बोलना चाहिए था राम सर शादी को आओ, हो जाएगा क्या यड़क्या प्लीज लगना लया, मतलब ही उसका चेंज हो जाएगा, ये से नो। और अगर ऐसा लिखा तो मतलब कंप्यूटर की मोबाइल की रैम हो जाएगा। स्पेलिंग इज द सेम बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट एंड इट विल चेंज द मीनिंग। छोटा सा एक मिस्टेक करते हैं पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, छोटा मिस्टेक करेंगे पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीटर, लड़के का नाम है पीटर, वो पीटर का अगर पी अगर मैंने स्मॉल किया तो गाली हो जाएगा, बहुत गंदी गाली होती है, देना नहीं, बहुत गंदी गाली हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक। वन पी इज कैपिटल एंड अनदर पी इज स्मॉल, बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक द मीनिंग विल चेंज। आज इसी को आज हम लोग सॉल्व करने के लिए लेकर आए हैं आपके सामने, ब्रॉट टू यू बाय केशव डाबर आमला हेयर ऑयल, कैपिटलाइजेशन। स्टार प्लस पे आपका सबका स्वागत है, समझ में आया? सो Yes, sir. कैपिटलाइजेशन क्या है कि कब हम लोगों को कैपिटल करना है, कब हम लोग को स्मॉल करना है लेटर को, हम लोग वो देखेंगे। इज दैट क्लियर? सो फॉर द न्यू टॉपिक Yes, फॉर sir. टुडे इज व्हाट कैपिटलाइजेशन। आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी चीज क्या होती है। सो जैसा अभी वो बंदे ने किया वैसा आप लोग करो मत, एक छोटी सी चीज बहुत बड़ा मिस्टेक बनाकर आपके लिए बड़ा साबित हो सकती है। सो कैपिटलाइजेशन इन आवर बुक, हियर इट इज, एंड द पेज नंबर इज व्हाट, पेज नंबर 42. 42. Thank you. So page number 42 is there, and this is what capitalization in our book. मैंने आप लोगों को ये बुक दिया हूँ मेरी, इसके अंदर पेज नंबर 42 पर आप लोगों को ये कैपिटलाइजेशन मिल सकता है। सो रूल नंबर 1 इज देयर फॉर कैपिटलाइजेशन इज व्हाट, स्टार्टिंग के जो दो रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, ये सबसे मेन रूल है, इसके ऊपर पूरा रूल कैपिटलाइजेशन का है। जितने भी रूल आएंगे आगे सब इसी के ऊपर है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली इतना है कि आप लोगों को दिमाग लगा के सोचना है, समझना है, फिर बोलना है। ओके, so capitalization is what that I'm going to share with you. So rule number 1 is what, this is Ram, this is a ram, and this is a ram. As you can see here in this example, you will find there this is Ram, R is capital, this is a ram, R is small, and all the letters are small, and this is a ram, all the letters are capital. So before we start capitalization के कुछ rules हैं जो कि मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करूंगा, क्यों, हैमर करने के लिए, आपके ब्रेन पे हैमरिंग करने के लिए, बट आपको रिपीट करना है मेरे पीछे पीछे, वो आंसर आपको देना है जब कभी मैं पूछूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज कैपिटल। ये पहले से मैंने आपको आदत डाल के रखा था, याद आ रहा है? मैं हमेशा क्लास के अंदर लिखता था, Yes, फर्स्ट sir. लेटर कैपिटल लिखता था, sir. लास्ट में फुल स्टॉप वगैरह लगाता था। वो रंगोली खेलने मजा आ रही थी मुझे अलग अलग कलर से। नो, if you see that the whenever you're writing the any sentence, first letter will be always capital. This is Ram,
this is T will be capital. Why? It is the first letter of the sentence. अब मैं अगर आपको पूछूंगा why this capital, so आप लोगों को आंसर देना है वहां पर first letter of the sentence. इतना ही. Okay? Why this T is capital? First First letter letter of the of the First sentence. letter of the First letter of the sentence. sentence. Good. So this is Ram. Ram, R is capital. Why? Because it's a proper noun. It's a proper noun. अब noun के अंदर English में बहुत सारे सर्कस है आगे. क्या noun होता है, कैसे noun होता है? For example, in English we have multiple types of noun, but we are going to talk about only 2 nouns over there. So R is capital by why? Because it's a proper noun. मतलब यानी कोई आदमी का proper name है वो. Particular आदमी का particular name है. That's what Ram. First letter will be capital. So whenever you are writing any name, particular name, you're going to write the first letter capital. Point number 1. Second thing is what? This is a ram. This is a ram. If you see here, R is small. यहाँ पर R small है. क्यों? It is a common noun. ये common word है. Ram ये common word है. जितने भी common word आपको मिलेंगे, उन सबको देखो मैंने small में लिखा हुआ रहेगा सब जगह पे. ऊपर जा रहा हूं मैं. दिख रहा है आप लोगों को ये नाउन होता है. नाउन मींस व्हाट? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड आइडियाज. सब मैंने स्मॉल में लिखा हूं. दिख रहा है? नेक्स्ट वन. Yes, sir. एक्टिविटीज नॉर्मल वर्ड है. प्लानिंग नॉर्मल वर्ड है. मीटिंग नॉर्मल वर्ड है. डिप्रेशन नॉर्मल वर्ड है. हैप्पीनेस नॉर्मल वर्ड है. सो जितने भी नॉर्मल वर्ड्स मिलेंगे आप लोगों को सबको मैंने स्मॉल में लिखा हूं. व्हाई? कॉमन नाउन वी ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर्स. ओके? मतलब ये एक जानवर का नाम है रैम. मतलब यानी मेंढा. मेंढा बोले तो कोई भी मेंढा हो सकता है. दुनिया में कितने सारे मेंढे होंगे? ये से नो अपने पास में भी कितने सारे है कि नहीं? सो मेंढा कोई भी मेंढा हो सकता है. सो रैम कोई भी रैम हो सकता है. इट्स अ कॉमन नाउन. एंड राम लड़के का नाम है. इट्स अ प्रॉपर नाउन. गेटिंग इट? तो प्रॉपर नाउन जब कभी भी लिखेंगे हम लोग तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. रैम कॉमन नाउन है. ऑल द लेटर्स विल बी स्मॉल. एंड whenever we are going to write any abbreviation means what? Short form. For example, ATM, all the letters will be capital. Whenever we are writing any short form, random access memory, it will be what? All the letters will be capital. Getting it? Now I'm just Yes, going sir. to explain you what is common noun, what is proper noun. Have a look here. अब common noun, proper noun का circus क्या है? ध्यान दीजिए. Now in English we have 2 types of noun. Generally we have around 7 to 8 types of noun, but the main common nouns and proper nouns I'm going to discuss today over here. Point number 1, 2 type के noun मैं अभी आज यहाँ पे discuss करने वाला हूँ और वो है common noun and proper noun. Now what do you mean by common noun and what do you mean by proper noun? Common noun, noun means what? पहली बात तो noun क्या होता है पहले वो देखेंगे अपन. Noun means what? Name. Name of what? Name of a person, place, animal, thing and idea. Noun मतलब इन्हें नाम, मराठी में नाम बोलते हैं उसको, जिसको हिंदी में बोलते, उर्दू में बोलते हैं इस्म. So noun means name, name of a person, place, animal, things and idea. Okay? अब अपन इन लोग का क्या करेंगे? डिटेल में जाएंगे. Now we have 2 types of noun, common noun and proper noun. अब कॉमन नाउन के अंदर मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल बॉय कैटेगरी में आता है पर्सन की. ओके? बॉय कैन बी एनी बॉय. आई एम आल्सो अ बॉय. जय आल्सो अ बॉय. मुस्तकीम इज आल्सो अ बॉय. आरिफ इज आल्सो अ बॉय. सो बॉय कैन बी एनी बॉय. नेक्स्ट वन, डॉक्टर इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन. पर्सन एंड डॉक्टर के कुत्ता होता है. डॉक्टर इज आल्सो अ पर्सन. सो इट्स अ नाउन. सो इट्स अ कॉमन नाउन. कोई भी हो सकता है. डॉक्टर कोई भी हो सकता है. यस और नो? सो doctor can be any doctor. It's a common noun. Person. Next, bank. Places की कैटेगरी में जाएगा ये. Bank can be any bank. कोई भी बैंक हो सकता है. नाम दिया क्या बैंक का? No, it's a common noun. It's a common noun. And sir, if I Next. say SBI banks, that will be common it will noun. become absolutely proper noun. SBI will become proper noun. Explain कर रहा हूं मैं. Next one, markets. Market भी क्या है भाई? Place की कैटेगरी में जाएगा. जगह है ना. It can be any market. We have many markets in Mumbai. We have many markets in Pune. We have many markets in Ujjain. We have many markets in Punjab. So market can be any market. It's a common noun. Next one, mobile. Mobile is also a thing. So mobile can be any mobile. मैंने नाम लिया क्या mobile का? No. Mobile can be any mobile. Next one, tiger. Tiger is an animal. We have many tigers in India. Yes or no? So tiger can be any tiger. We don't have the particular name of it. An idea. For example, honesty, doggy. Doggy क्या है? Animal है. So honesty idea है यहाँ पर. Honesty common noun है. Honesty ईमानदारी. ईमानदारी का कोई नाम होता है क्या? It's a common noun. Yes or no? But what is a proper noun in English? If we have given some particular name to these common nouns,
we are going to call it proper noun. अब ये कॉमन नाउन को अगर मैंने अगर कुछ पर्टिकुलर नाम अगर दिया तो उसको मैं बोलूंगा प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय कैन बी एनी बॉय. आरिफ इज अ बॉय, जय इज अ बॉय, अंसार is a boy, Mustaqim is a boy, Raza is a boy. Boy can be any boy. But if I say Karthik, Karthik will become proper noun. Boy का नाम है Karthik. Karthik will become proper noun. Is that clear? समझा? Yes, sir. So Karthik will become proper noun. For example, लड़के का नाम है शिवदास. Shivdas will become proper noun. Proper Boy, noun. common noun. Shivdas, proper noun. Ansar, proper noun. Boy, common noun. Jay, proper noun. Boy, common noun. Yes or no? So Yes, boy sir. can be any boy, but Jay किसी एक बंदे का particular नाम है. So it will become proper noun. Any doubts to anyone? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Miss Supriya, Yes, sir. Yes. Miss Supriya, Miss Mehak. Yes, sir. Yes, sir. So common noun, proper noun. Are you getting that? So common noun, it can be any boy. But अगर वो boy का अगर particular नाम है, तो उसको मैं बोलूँगा proper noun. That's what Jay, Shivdas, Karthik. Next one, bank. Bank can be any bank. It's a common noun. But अगर वो बैंक का नाम दिया मैंने सरस्वती बैंक, देना बैंक, महेश बैंक, भागो बैंक, फुकट बैंक, तो वो बैंक का अगर कुछ नाम है पर्टिकुलर तो बैंक का क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. सरस्वती noun. बैंक प्रॉपर नाउन. SBI बैंक प्रॉपर नाउन. HSBC बैंक प्रॉपर नाउन. Yes or no? Bank can be any bank. And if I give any bank, it means the name of the bank, something, it will become proper noun. Saraswati Bank, proper noun. Next one, for example, markets. Market can be any markets. अगर वही मैंने अगर मार्केट का अगर नाम दिया तुलसी बाग, yes or no? So तुलसी बाग will become proper noun. Getting that? इसके लिए उसका तुलसी का T कैपिटल रहेगा, सरस्वती का S कैपिटल रहेगा, शिवदास का S कैपिटल रहेगा, कार्तिक का K कैपिटल रहेगा. प्रॉपर नाउन है ना इसके लिए. So मार्केट कैन बी एनी मार्केट. बट अगर मैंने बोला तुलसी बाग तो तुलसी बाग क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. मार्केट कॉमन नाउन. रामसुख मार्केट प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, मोबाइल. मोबाइल कैन बी एनी मोबाइल. इट्स अ कॉमन नाउन. बट इफ आई हैव गिवन सम नेम टू दैट मोबाइल, सैमसंग प्रॉपर नाउन, माइक्रोमैक्स प्रॉपर नाउन. मोबाइल कॉमन नाउन, सैमसंग प्रॉपर नाउन. मोबाइल कॉमन नाउन, माइक्रोमैक्स प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, टाइगर. टाइगर इट्स अ कॉमन नाउन. अपने शेर को बोलते हैं अपन टाइगर. यस नो? बट वो टाइगर का नाम अगर मैंने दिया सोनू, अब अपने पास में एक टाइगर है, वो टाइगर का नाम है सोनू. यस नो? यस नो? तो Yes, sir. सोनू विल Yes, बिकम sir. प्रॉपर नाउन. Proper noun. सेम केस डॉगी. अपने पास में एक कुत्ती है, एक कुत्ता है अपने पास में, उसका अपन ने नाम दिया स्वीटी. सो स्वीटी विल बिकम प्रॉपर Proper नाउन. noun. Doggy will be common noun, but sweetie will become proper noun. Is that clear to all of you? Yes, sir. समझा? Yes, sir. So common Yes, noun, yes, sir. proper noun, common noun, proper noun. So if we are writing any common noun, we are going to write all the letters small. And if we are writing any proper noun, all the first letter will be capital. So Ram, it's a proper noun. Ram, it's a common noun. That's why all the letters are small. Ram, proper noun, R will be capital. And whenever we are writing any abbreviation, all the letters will be capital. This is a RAM, an abbreviation, short form है वो. Random access memory. This is an ATM, ATM. All the letters will be capital. Yes or no? Any doubts to anyone? No, sir. Any questions? sir. So this was what? No. Rule number 1. Now let's go to rule number 2. अब हम लोग चलते आगे. For example, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया RAM. अब पुराने जमाने के अंदर, अब जैसे मैंने अभी आप लोग के सामने वहां पर लिखा RAM ऐसा. English every 5 years, 10 years, 15 years, 20 years में English change होता है. इसके लिए English जिंदा है. इंडिया के अंदर we have 1638 languages. इंडिया के अंदर अपने इंडिया में 1638 languages हैं. उसके अंदर से कितने लैंग्वेज बोले जाते रहेंगे पूरे इंडिया के अंदर? मैक्सिमम 150 आई थिंक सो. अगर गांव भी को भी अगर अपन ने पकड़े ना तो टोटल मैक्सिमम 150 लैंग्वेजेस इंडिया में बोले जाते रहेंगे. बाकी के लैंग्वेजेस का क्या हुआ? 1450-1500 लैंग्वेजेस का क्या हुआ? डाइड, मर गए वो सब लैंग्वेजेस मर गए. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वर्ड्स नहीं थे ना, उन लोगों ने चेंजेस नहीं किया. अगर आप लोग आज मराठी लेंगे, मराठी में भी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं अपन. हे माझा फोन दे रे, हे माझा फोन दे रे, वो फोन इंग्लिश का वर्ड है. भाऊ जरा चार्जर द्या ना जरा मला.
भाऊ मला जरा चार्जर द्या. तो चार्जर इंग्लिशचा वर्ड आहे, आपला मराठीचा वर्ड नाहीये. गेटिंग इट? कुठे चाललंय? मी क्रिकेट खेळायला चाललोय. ते क्रिकेट ते मराठीचं नाही, इंग्लिशचा वर्ड आहे. प्युअर वर्ड ऑफ क्रिकेट इन मराठी दैट इज व्हाट लंबडंड गोलपिंड. इतना प्योर मराठी किसी ने बोला था क्या? कोई बोलता ही नहीं है. इन प्योर मराठी वी से लंबडंड गोलपिंड टू क्रिकेट. जाके किसी भी एक मराठी एक्सपर्ट को पूछो, वो बोलेगा आपको. अपने यहाँ पे क्रिकेट बोलते हैं. वी आर नॉट स्पीकिंग प्योर मराठी, वी आर स्पीकिंग मिक्स्ड मराठी. सेम केस हिंदी. अरे मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ. अरे आज शाम की मेरी फ्लाइट है. आज शाम की मेरी फ्लाइट है, मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ. दैट फ्लाइट इज एन इंग्लिश वर्ड. एरोप्लेन इज एन इंग्लिश वर्ड. यस नो, बट वी आर यूजिंग इन हिंदी. बोलते क्या? मैं उड़न खटोले से जा रहा हूँ. आहा, सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है ना. सो लोग बोलते नहीं उड़न खटोले से जा रहा हूँ, बट बोलने का एक तरीका रहता है. दैट वी आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ इंग्लिश. सेम केस इंग्लिश ने भी एक हिंदी का मराठी का सपोर्ट लिया है. सो बिना सपोर्ट की लैंग्वेज चलती नहीं है. सेम बिफोर वी यूज्ड टू राइट लाइक दिस. पहले एब्रिविएशन ऐसे लिखते थे, R.A.M. आज के जमाने में डॉट निकाल दिया हम लोगों ने और डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं. क्यों? इंग्लिश चेंज हो गया है. इंग्लिश चेंज हो गया है. गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल ETC. व्हाट इज दिस? एग्जाम्पल ग्रेशिया. इसको बोलते हैं एग्जाम्पल ग्रेशिया. एटसेट्रा. यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे उसको बोलते हैं एटसेट्रा, एक्स्ट्रा, एक्सेट्रा. गलत. दैट इज व्हाट एट सेट रा. वो एट सेट रा है. वो एट सेट रा. एक्स्ट्रा, बिक्स्ट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा. लोग हमारी तरह बोलते हैं एक्सेट्रा, एक्सेट्रा. रॉन्ग. दैट्स व्हाट एट सेट रा. Etc. Is that clear? And what is this? IE? That is simple. So the basic rule is there for capitalization is what? The basic rule for capitalization is what? Whenever we are writing a proper noun, first letter will be capital. Whenever we are writing common noun, all the letters will be small. And whenever we are writing an abbreviation, all the letters will be capital. And whenever we are starting a new sentence, the first letter will be always capital. Is that clear? ये चार चीजें भी हम लोग को सीखने के लिए मिली. प्रॉपर नाउन के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कॉमन नाउन के लिए सब लेटर स्मॉल होते हैं, और एब्रिविएशन के लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए सब लेटर कैपिटल होते हैं. और चौथी बात, जब कोई भी हम लोग कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होने वाला है किसी भी हालत में. ओके, नाउ आई वांट यू पीपल टू गिव मी वन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन. मुझे आप लोगों के पास से चाहिए कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल एयरपॉड्स कॉमन नाउन, एप्पल प्रॉपर नाउन. कार कॉमन नाउन, टोयोटा प्रॉपर नाउन. मुझे एग्जाम्पल चाहिए आप लोग के पास में, जल्दी जल्दी. गार्डन कॉमन नाउन, सारसबाग प्रॉपर नाउन. करेक्ट. गार्डन कॉमन नाउन, सारसबाग प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट. Engineer common noun and Arslan proper noun. करेक्ट. Hotel common noun, Madina Hotel. प्रॉपर नाउन. करेक्ट. बॉक्स. Box common noun. Chocolate box proper noun. नो. चॉकलेट बॉक्स, ऐसे बॉक्स का नाम रहता है क्या? कोई बॉक्स का नाम है? नहीं. फिर उसका अगर कोई पर्टिकुलर नाम अगर रहेगा, if we have the particular name of that thing, it will become proper noun. For example, pen. Pen common noun and Reno proper noun. Reno नाम है इसका, जिसको आप लोग रेनॉल्ड्स बोलते हैं. Reno proper noun, pen common noun. For example, chair. ये chair common noun, कोई भी chair हो सकती है, but वो chair का नाम है deluxe, so deluxe will become proper noun. Watch. Shop. Watch. Yes, watch. Season proper noun. Correct. Place common noun, Agra proper noun. Very good. Arif. College common noun, Pune college proper noun. Correct. Mr. Mustaqim. Doctor common noun, Doctor Inamdar proper noun. Correct. Jay. Cell phone common noun, Redmi Note 9 proper noun. Correct. School. Jay. School is common noun, Saint Mary proper noun. Correct. Mehak. Ma'am. School, city Common noun. noun, and this Pune proper Proper noun. noun. Correct. Mr. Mustaqim. Ghazala. Mehak. Building common noun, Gagan Emerald proper noun. Proper noun. Next.
Book, common noun. Harry Potter, proper noun. Proper noun. Correct. Laptop, So common noun. Dell, proper noun. correct. Supriya. Country, proper noun. India. Sorry, Country. country, common noun. Common noun. India. Proper noun. Proper noun. Next. Jay. Common noun. Airline. Proper noun. Yes, Jay. Airlines is common noun. Jet Airways is proper noun. Correct. समझ में आया आप लोगों Mall, को फंडा क्या है? common noun. Yes, sir. Yes. Kumar Mall, common Pacific noun. Mall, proper noun. Kumar Pacific, proper noun. Any doubts? Tom, Mobile is No, sir. common noun. iPhone Yeah. mobile is proper noun. Correct. Mobile, common noun. iPhone, proper noun. So whenever we are Tom. writing common noun, all the letters will be small. Yes, ma'am. no, I just want to give one example. Other. So whenever we are writing any common noun, we are going to write all the letters small. And whenever we are writing any proper noun, all the letters will be capital. Sorry, first letter will be capital. Karthik, K capital. Shivdas, S capital. Saraswati, S capital. Tulsi, T capital. Bag, B capital. Samsung, S capital. Micromax, M capital. Sonu, and S capital. Sweetie, S capital. So whenever we are writing proper noun, first letter will be capital. Whenever we are writing common noun, all the letters will be small. Any doubts? No, sir. Let's go. No, sir. Now we are going to go for the next one, rule number 2. Rule number 2 is there, and that is showing that how to write a sentence in English. So I am studying. I is capital. Why? First letter. First letter of the First letter sentence. of the sentence. Good. I am studying, first letter of the sentence, and you can see there I am studying, all the letters are small. It's what common words, and at the end there is a full Common. stop. It's a normal sentence. So in normal sentence, we are going to apply the same rule. Next one. In the question, am I studying? A is capital. Why? First A. letter of Common. First letter of the sentence. Am I studying? But this I is capital. Why? Proper name. Sir, No, I is not a proper noun actually. Because it's particular. no, sir, because it is talking about some particular person like me. अब आप लोगों को पता तो रहेगा that I के लिए इंसान तो कुछ भी करता है. मैं. Yes or no? Madam is absolutely correct, but we can't directly call I as a proper noun, but it is acting like a proper noun. Now let me ask you one simple thing. अब मैं आप लोगों को एक चीज पूछता हूँ. I मतलब ही नहीं क्या है, एक पूरा proper sentence की तरह काम करता है. इसके लिए I को capital किया है. Now always remember, whenever we have I alone, we are going to capitalize that I. जब कोई भी English में I अकेला आएगा, अकेला. Otherwise, if you see there, I is also here, but I उसके साथ में उसके माँ बाप भाई बहन सब आ रहे हैं. इसके लिए वहां पे उसको छेड़ना नहीं. समझा? If you see here I, आरिफ, उसके साथ में उसके भाई लोग हैं. नजदीक जाना नहीं. दिख रहा है? I will not be capital, but whenever I is coming alone, I will be always capital. Whenever I is coming alone, I will be capital. Why? Because I is acting like a sentence. I is acting like a sentence. For example, अगर आप लोगों ने मुझे पूछा, for example, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी कोई बंदे को पूछा, कोई बंदा था कि यहाँ पे रजा एब्सेंट है ना, चलो ओके अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे जैसे कि जय को, who lives in उज्जैन from our class, तो जय का आंसर क्या रहेगा? Who lives in उज्जैन, जय का आंसर क्या रहेगा? I. Full stop. जय यहाँ पर क्या बोलेगा? सिर्फ हमारा that's what I. मैंने पूछा वहां पर क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? I. Who lives in उज्जैन, उज्जैन में रहता कौन है? Who lives in उज्जैन, तो वहां पर जय का आंसर क्या था? I. मतलब I. मैं रहता हूँ उज्जैन में. एक्चुअली बोलना चाहिए था I live in उज्जैन, so he will say only I. जय ने क्या कहा? सिर्फ only I. That I will be acting like a full sentence. इसके लिए मैंने उसके बाद में क्या लगाया? Full stop लगाया. दिख रहा है आप लोगों को? So Yes, sir. I, whenever I is coming alone, it will be always capital. Why? Because that I is acting like a proper noun. That I is acting like a sentence. So whenever we are writing anywhere, I is alone, I will be capital. Either it is coming at the beginning, or it is coming at the end, or it is coming in the middle. I will be always capital. Is that clear? Yes, sir. Clear? And at the end, there is a question mark. For the questions, we are going to follow the same rule. Next one, I'm not studying. This is the negative sentence. I is capital. Why? Both. First First and letter of the sentence. And second thing, I is uh, alone. I is alone.
Good. Next one. Now this is what a negative sentence at the end, full stop. Now what lovely weather. If you see the what lovely weather, you'll find here what W is capital Y. First letter of sentence. First letter of the sentence, and at the end there is an exclamation mark, and all the letters are small y because these are common words. Okay, so ultimately the rule is saying that whenever we are going to have here first letter of the sentence, it will be completely capital, and whenever we are going to write I will be always capital alone. Okay, any doubts? No, sir. Explanation लेट कब लगाना है मुझे एक बार बताओ ना. Definition sorry, exclamation mark कब लगाते हैं हम लोग? Yes, Expressions for correct, just to show expressions. Now for example, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले पूछा था लेटर में चिल्लाते कैसे हैं, लेटर में चिल्लाना कैसे है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग लिख रहे हैं किसी को एक्सक्लेमेटरी लेटर, सेंटेंस के साथ. करेक्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में हम लोग चिल्लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जय है, अब हमारा जो जय है, जय का हो गया झगड़ा. कहाँ पे? घर पे. जय का घर पे झगड़ा होने के बाद में क्या हुआ, अब जय को उसने मारी और घर से बाहर निकाल दी. अब जय हमारा स्टेशन पे रह रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे. तो वहां पे बेचारा पेपर बिछाता है, जय वहीं पे सो जाता है. 4 दिन से जय ने फोन बंद करके रखा था, और अचानक में 4 दिन के बाद में फोन ऑन किया, तो 4 दिन से ना बेचारा जय काम पे गया ना घर पे गया. तो फोन ऑन करने के बाद में जय को 2 मैसेजेस मिले. मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम भी. तो दोनों भी मैसेजेस सेम थे. क्या थे वो? वेयर आर यू, एंड सेकेंड सेंटेंस वाज देयर, वेयर आर यू. दोनों भी सेम मैसेजेस जय को मिले, पर पहला वाला जो मैसेज था उसमें लिखा हुआ था ऐसा, वेयर आर यू. सेकेंड वाले मैसेज में लिखा हुआ था ऐसा, वेयर आर यू. कैन बोथ ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग? No. No. No, sir. No, ultimately no. Both of them contains different meanings. दोनों का अलग अलग मीनिंग है because of this symbol. सिर्फ ये सिंबल की वजह से दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया. If you see the first sentence, where are you, the first sentence, it is from the boss. ये उनके बॉस ने किया है. Why? Because the boss is asking a normal question. The boss is asking a normal question to Jay. Jay, where are you? कहाँ है जय? आप 4 दिन से काम पे नहीं आए हैं. Don't you want to continue this job, or shall I hire someone else? क्या मैं किसी और को हायर करूं? It's a normal question, and that boss is asking Jay a normal question, so he will put there a question mark. और ये जो था, ये सेंटेंस या मैसेज था जय की वाइफ का. It was the wife of Jay, and she was actually shouting at him. कहाँ है? अभी अपने अब्बा क्या करते? फोन करते ना, हेलो कहाँ है? अब्बा ये नहीं पूछते बेटे एड्रेस दे मुझे, अब्बा पूछते कि कहाँ है तू, जल्दी घर पे आ वरना मैं आता हूँ बेल्ट लेके. सो अल्टीमेटली आवर फादर इज शाउटिंग, सो द वाइफ वाज शाउटिंग, जय वेयर द हेल आर यू, प्लीज गिव मी द एटीएम, अदरवाइज गेट लॉस्ट. एटीएम दे के चले जाओ, बाकी मत आओ तुम कभी घर पे. गेटिंग इट? समझा? समझा? Yes, sir. So because Yes, of this exclamation mark, the meaning will change. Expression बताने के लिए यूज करते हैं मिस्टर मुस्तकीम को. Yes, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे ना, ओ वाओ व्हाट अ लवली वेदर, क्या चटके लग रहे गर्मी के. सो दिस इज व्हाट अ लवली वेदर. हम लोग वहां पर एक्सप्रेशन बताने के लिए हम लोग वहां पर यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर आपको कोई चीज को चिल्लाना है, कोई एक्सप्रेशन देना, मतलब कोई टाइप की फीलिंग डालनी है सेंटेंस में, यू आर गोइंग टू पुट देयर एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल चिल्लाते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलना है किसी को निकल यहाँ से, गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट बोलने के बाद में आप लोग वहां पर लगा सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब यानी आप चिल्लाकर बोल रहे हैं. ओके, सेम केस अगर आपने किसी को बोला ओ वाओ क्या बात है, इतना भारी वड़ा पाव, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू पुट देयर व्हाट एक्सक्लेमेशन मार्क. गेटिंग इट? क्योंकि आप वो वाओ के अंदर आपने क्या किया, नॉर्मली वाओ नहीं बोला, आपने क्या बोला, वाओ ओ माय गॉड व्हाट अ गिफ्ट. सो वाओ वहां पर फीलिंग्स थी. और अगर मैंने वाओ के साथ में अगर खाली अगर मैंने लगाया है यहाँ पर फुल स्टॉप, तो मीनिंग क्या होगा उसका? वाओ, ऐसा, कैसा वाला वाओ, हाँ आ गया. तो मतलब इसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है. समझा? समझा? सो दिस वाओ हैज नो फीलिंग्स. आप लोग को वहां पे लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क. चलो भाई, नेक्स्ट वन टू द नेक्स्ट वन. आई वांट हिम टू मी, आई वांट हिम टू मी. excuse me, sir. या Sir, in emails generally we write greetings for the day or like sentence warm greeting. That time we put exclamation mark over there. Correct. Why? Means
Why, So we guys? have, Yes, we have to put there. For example, if I'm writing good morning, even at that time I'm going to write there good morning exclamation mark. This is the correct one. Why? Because the moment when you greet someone, अब जब आप लोग किसी को आके मिलते हैं, ऑफिस में आके मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, ऐसे बात करते हैं क्या हम लोग? No, कैसे बात sir. करते हैं? ओ हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग. सो वो गुड मॉर्निंग के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है. ऐसे थोड़ी होता है गुड मॉर्निंग, मतलब ये नहीं क्या है, आप उसको ऐसे थोड़ी बोले तेरी मॉर्निंग बर्बाद हो. वो ऐसे लग रहा है सत्यानाश वाली वार्निंग है. बोलना चाहिए हम लोगों को वहां पर एकदम अच्छे से गुड मॉर्निंग, ओ हाय, गुड मॉर्निंग, अरे आपकी शुभ सकाळ बोलते हैं ना हम लोग. सो दिस इज व्हाट गुड मॉर्निंग. तो वहां पे फीलिंग्स आते हैं, इसके लिए वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग को लगाना पड़ेगा. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, सो वहां पर एक्सप्रेशन देने के लिए, उसको सामने वालों को जगाने के लिए. अभी हम लोग किसी को बोलते हैं हाय, ऐसे नहीं, हम लोग कैसे बोलते हैं हाय, हेलो. सो हेलो हाय के अंदर भी फीलिंग्स है, इसके लिए वहां पर क्या हम लोग को लगाना चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क. Any doubts? And sir, we are using when in mail, we are type dear sir and then comma. गलत है सर, वो गलत है. वो वजह अगर आप देखेंगे सर, ध्यान दीजिए, कॉमा कब लगाते हैं इंग्लिश में? मैंने आपको पता है ग्राफिन के अंदर पढ़ाया था एकदम बेसिक में. कॉमा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? What do you mean by comma in English, guys? When many things are there, many words. कॉमन का नॉर्मली कॉमा का नॉर्मली मीनिंग होता है इंग्लिश में एंड. And कॉमन वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश में कॉमा का एंड. ध्यान दीजिए, when we are writing more than one word together, we are going to use a comma. For example, I have a pen, comma, a board, comma, a car, and a flat. अगर आप लोग देखेंगे, मैं बार बार एंड लगा सकता हूँ क्या? I have pen and a board and a car and बार एंड लगा सकता हूँ क्या मैं? नहीं. वो बार एंड No. नहीं लगाऊं, इसके लिए मैंने वहां पर क्या लगाया? कॉमा. I have a pen, board, a car and a flat. जो लास्ट वाला कंटेंट रहेगा खाली उसके पहले एंड आएगा, बाकी जगह पे एंड नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉमा का मतलब होता है एंड. अब मुझे एक बात बोलो जय, मेरे प्यारे जय, ध्यान दीजिए. Yes, sir. इफ यू सी देयर, अगर आप लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे लगाते हैं हम लोग कॉमा, जहां पे हम लोगों ने बोला डियर सर, कॉमा. Yes, sir. I have seen so every mail. सर In इंडिया every में तो mail. बात ही मत करो. अपन पहली बात तो जब अपन क्लास को आते नहीं समझ के चलने का, अपन इंग्लैंड में जा रहे थे. देखो इधर ऊपर इंग्लैंड का झंडा दिख रहा है सर आपको, टाइम के बाजू में. अपन इंग्लैंड में. ओके दोस्त, मुंह से नहीं दिख रहे अपन Okay, sir. इंग्लैंड वाले, पर अपन इंग्लैंड में फिलहाल में. इतना समझ के चलना, क्योंकि अपन बिल्कुल भी वो रफीक भाई, गणेश भाई, इन लोग की बुक्स यूज नहीं करते. सेम केस इफ यू सी देयर, अपने इंडिया में मिस्टेक करते हैं, टीचर्स लोग मिस्टेक करते हैं लिटरली. दे डोंट नो, क्योंकि उन लोगों को बेचारों को, टीचर्स लोग को खाली अभी आज तक की वही मालूम है, इंसान बंदर से बना था, चार्ल्स डार्विन वाली थ्योरी. तो बेचारे टीचर लोग अपने आप को अभी भी बंदर समझ रहे हैं. सॉरी टू से दिस. उन लोग अपने को वही बेचारे बाल भारती पढ़ा रहे और अपने को बैल भारती बना रहे. यस नो. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली. जस्ट वेट अ मिनट, आई एम सो सॉरी. सॉरी. सो डियर सर, अभी इसके बाद में हम लोग यहाँ पे डियर सर के बाद में कॉमा लगाते हैं ना, तो ये कॉमा लगाना गलत हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज इसके बाद में हम लोग क्या लिख रहे हैं उसको, इसके आगे कुछ लिखते हैं क्या हम लोग? कुछ लिखते हैं क्या? No, sir. no. No. सो अल्टीमेटली यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे. वी कांट राइट देयर दैट कॉमा. गेटिंग इट? सो दिस कॉमा विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग ओवर हियर. हमारे यहाँ पे कॉमा लगाएगा ही नहीं. मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ, अभी तो मैंने वो मेरे एक स्टूडेंट को दिया हूँ. मैं आपको बुक दिखाता हूँ, मेरे पास में यूके का बुक है, लेटर राइटिंग का बुक है. इन दैट बुक यू विल फाइंड देयर, एक भी जगह पे उन लोगों ने लेटर के अंदर डियर सर के बाद में कॉमा नहीं दिया है, दिया ही नहीं. अगर आपको मिला कॉमा, आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम. क्यों? क्योंकि वो बुक में कहीं पे भी एक भी जगह पे भी नहीं है. हमारे यहाँ पे देखो लास्ट में लिखते हैं हम लोग अभी भी लेटर राइटिंग के अंदर. हमारे यहाँ पे लेटर राइटिंग भी लोगों को आता नहीं है. थैंकिंग यू लिखते कि नहीं?
हमारे यहाँ पे आज भी क्या करते हैं लोग, लेटर राइटिंग में क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू लिखते हैं, यस नो? Yes, sir. थैंकिंग यू कहाँ पे लिखते थे मालूम है? अंग्रेज लोग जब दुनिया यहाँ पे थे ना इंडिया में, तो अपने इंडिया के जो लोग थे उन लोग को पे गुलामी, उन लोग को गुलामी करने लगाते थे वो लोग। तो इंडिया पहले क्रिकेट खेलते थे उन लोग, अंग्रेज लोग इंडिया में, तो वो जब बॉल मारते थे ना, अपना इंडियन जाता था वहां पे, भागते जाता था, उन लोग को लाकर देता था, ये लो माई बाप। तो वो टाइम पे उन लोग क्या करते थे, इंडियन लोगों को बोलते थे अपॉइंटमेंट लेके आने का, और अपॉइंटमेंट के लास्ट में लिखने का थैंकिंग यू मेरे माई बाप, माझे माई बाप, हमारे सरकार, हाँ। तो वहां पे वो चलता था, उन लोगों ने अपने गुलाम बना के रखे थे, ये गुलाम वाला सेंटेंस है थैंकिंग यू, हाँ। उन लोग के एक भी लेटर में आपको थैंकिंग यू नहीं मिलेगा, एक भी लेटर में नहीं मिलेगा आपको थैंकिंग यू। हमारे यहाँ पे टीचर्स लोग हमको आज भी लिखाते हैं, गलत, सिस्टम ही गलत है वो, यस नो? गेटिंग इट? चलो, सो दिस इज व्हाट, अगर कॉमा लगा रहे तो गलत है दोस्त मेरे। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3 इज देयर, सिंपल रूल इज देयर, वही हमारा जो मेन रूल है, याद रखना है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, भूलना नहीं है। नाउ दिस इज अ बॉय, T is capital, why? First letter of the sentence. This is a boy, boy B will not be capital, why? Because it's a Common. common noun, can be any boy. But if I'm writing that's Joseph Peterson, so that's T will be capital, first letter of the sentence. That's Joseph Peterson, so Joseph J will be capital, Peterson P will be capital. Joseph J will be capital, Peterson P will be capital. Why? Because it's Because a it is particular name. proper name. So proper It's a noun. particular name of a person, it's a proper noun. Joseph J, Peterson P. Joseph Peterson, it's a name of a person. Same case, this is a boy, boy B will not be capital. But if I write that's Arif Sheikh, so Arif A, Sheikh S will be capital. Getting it? समझ में आ रहा है? Now जैसे भी यहाँ पर आसमा मैडम ने नाम लिखा है अपना, गलत लिखा है वो, शेख का एस कैपिटल नहीं किया है, वो शेख का एस कैपिटल होना चाहिए, दिख रहा है? So Asma Sheikh, Asma A, Sheikh S will be capital. Why? Because it's a proper noun. Okay. Next one. Next one is what? She is my mother and she was Mother Teresa. Have a look here, please. Rule number 4 is there and it is saying that she is my mother. S is capital. Why? First letter of the sentence. First letter. Next, she is my mother. Mother M is not capital. Mother M is not capital. Why? It's a common noun. Common noun. For example, mother can be any mother. आपकी माँ, मेरी माँ, उसकी माँ, इसकी माँ. So माँ तो माँ रहती है, सबके पास में माँ है. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? So mother is a common noun. Can be any mother. Mother can be any mother. But if I write here, she was Mother Teresa. So she, S is capital. Why? First letter. First letter First letter of the sentence. She was Mother Teresa. Teresa, T is capital because it's a proper noun. Proper noun. Correct? But why Mother M is capital? Why Mother is M is capital? क्या वो मदर टेरेसा का नाम बचपन से मदर था? बचपन से था उनका नाम मदर. देखो माँ, इनका नाम ह्यांचं नाव आपण ठेवलंय आई. अगं आई पडाली, अरे आई पडली. आईचं जेवण झालं का? आई शाळेत गेली. बचपन से नाम माँ था क्या? No, sir. No. So what is this mother? It's a This title. mother is the Title. title. आगे लिखा है देखो मैंने. This mother was a title given to that lady. वो लेडी ने जब इंडिया में आके लोगों का मदद वगैरह किया, तो वो लेडी को लोगों ने क्या टाइटल दिया? मदर टेरेसा. So mother जो था उन लोगों का टाइटल था. And always remember, whenever you are writing any title in English, the first letter will be capital. Any title in English, the first letter will be capital. For example, अभी जैसे कि हमारा भी, yes, Mahatma Gandhi, like Mahatma is a correct. title. For example, he was Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi, if you see there, Mahatma is not a name. Yes, sir. Mahatma It's a was a title for the person. So Mahatma M will be capital. Gandhi G will be capital. Gandhi G capital because it's a proper name, proper noun. Yes or no? And title, Mahatma is there, M will be capital. But sir, Getting it? Gandhi's surname, it is not name. Okay, Karamchand. Surname. Okay, Mahatma Karamchand Gandhi. दोस्त खुश?
नो सर, करमचंद एक्चुअली केवील। गांधी जो सरनेम वो तो किसी का भी सरनेम तो किसी का भी हो सकता है ना सर। हाँ बट वो अभी पर्टिकुलर तो मेरा है ना, पर्टिकुलर किसी Okay. इंसान का है ना, इसके लिए वो कैपिटल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आपका नाम है, ही इज अजय श्रीवास्तव, ये सुनो। यस सो सर। अजय श्रीवास्तव, अजय आपका नाम है। अब अजय नाम के भी इंडिया में कितने, कम से कम लाख भर तो रहेंगे इंडिया में अजय नाम के। यस सर। सो श्रीवास्तव भी लाख भर लोगों को, 50-60 लाख लोगों का नाम रहेगा श्रीवास्तव। सो बट अपने यहाँ पर कौन है ये, आप तो प्रॉपर नाउन होगा ना, यस ये सर। सुनो, गिने चुने के Yes, लोग sir. हैं, मीन्स व्हाट, अजय श्रीवास्तव, इट इज अ प्रॉपर नाउन। सो अजय ए श्रीवास्तव, एस विल बी कैपिटल। गेटिंग इट? Okay, sir. समझ Yes, में आ रहा है? sir. सो व्हेनेवर वी आर जस्ट गोइंग टू गिव अ नेम, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, और इफ वी आर जस्ट गिविंग एनी टाइटल, इवन टाइटल फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल टू। महात्मा एम कैपिटल, महात्मा एम कैपिटल, मदर एम कैपिटल, सेम केस। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारा आरिफ बहुत अच्छा बच्चा था, अभी वो आरिफ जो अच्छा बच्चा नहीं रहा, आरिफ को एक बीमारी हो गई है। जब आरिफ को बीमारी हो गई है तो बीमारी का नाम है सद्दू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज। अब जो टाइटल है हमेशा पहले लगता है, बाद में लगता है क्या वो? नहीं, टाइटल हमेशा पहले लगता है। कभी ऐसे देखा कि आप लोगों ने कुमार डॉक्टर, क्या बोलेंगे, डॉक्टर कुमार, ये सुनो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग ऐसे बोलेंगे रोज मिसेस? नो, मिसेस रोज। No. So title will be always at the beginning of a name, at the starting of the name. Same case, he is सद्दू आरिफ, तो यहाँ पे सद्दू जो है हमारे आरिफ का टाइटल है, वो समझा? एंड आरिफ वो पर्टिकुलर नेम है। Any doubts? So mother वहां पर क्या No, था? sir. मदर वो लेडी का टाइटल था, ट्रीजा प्रॉपर नाम था। Getting it? So mother was the title of the lady and Teresa is the name of the lady. So whenever we are writing the title, we are going to write the first letter will be capital. Next one. Let's go for the next one. Rule number 5. She's Mrs. Rose. So she's S is capital. First letter of the sentence. sentence. Very good. Now she's Mrs. Rose. I can understand Rose S is R is capital. Why? Because it's a Proper noun. proper noun. Rose is a proper noun. It's a proper noun. R will be capital. And Mrs. M is also capital. Why? Because it's a Title. title. Next one. He is Dr. Noah. So he, H is capital. Why? First letter. First letter of the sentence. He is Dr. Noah. Noah is the proper noun. N will be capital. And Dr. D will be capital. Why? Because it's a Title. title. So whenever we are writing any title, first letter will be capital. First letter will be capital. Getting it? For any title, Yes, first sir. letter will be capital. Now it happens in our colleges. You might have seen there. They are committing mistakes. Now have a look here. Excuse me, sir. अब जैसे कि मैं मेरी क्लास में ही बोलता हूँ, yes sir, please make sentences sir, yes sir, yes sir, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ जय sir, आरिफ sir, इमरान sir, yes or no? So sir is the title only for respect. Sir जो है ना, ये जो word है, ये खाली respect के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में। 4 साल का बच्चा भी अगर कोई रहेगा उसको भी अपन सर बोल सकते हैं। अगर कोई 4 साल का बच्चा रहेगा उसको भी हम लोग सर बोल सकते हैं। Getting it? जरूरी नहीं सर खाली पढ़ाने वाले को बोलेंगे। हमारे यहाँ पे खाली टीचर को सर बोलते हैं, और टीचर को सर बोलने के बाद में उनको लगता है ओ माय गॉड बहुत बड़ा टाइटल है। एक्चुअली सर खाली रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। गेटिंग इट? सो सर हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, छोटे बच्चे को भी बोल सकते हैं, बड़े आदमी को भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं वो पढ़ाता रहेगा, प्रोफेसर रहेगा। सर हम किसी को भी बोल सकते हैं, मैडम भी किसी को भी बोल सकते हैं। मैं बोलता ना क्लास में यस मैडम प्लीज स्पीक मैडम, महक मैडम, मुस्कान मैडम। सो मैडम कैन बी एनी मैडम, इट्स अ कॉमन नाउन। For example, excuse me sir, E is capital. Why? First letter First letter of the sentence. Excuse me sir, sir S will not be capital, madam M will not be capital. Sir S will not be capital, madam M will not be capital. ना sir का S capital होगा, ना madam का M capital होगा। Why? Because it's a common noun. Common noun है वो, कोई भी मैडम हो सकती है, कोई भी सर हो सकते हैं, मतलब इन्हें हम किसी को भी लगा सकते हैं मैडम एंड सर। बट अगर मैंने वही सर अगर किसी को टाइटल मिला रहेगा, जैसे अपने इंडिया में सचिन तेंदुलकर को मिला है, सर सैयद अहमद खान, उनको भी सर का टाइटल मिला है। सर का एक टाइटल रहता है, अवार्ड रहता है। अगर वो अवार्ड अगर किसी को मिला सर के नाम से तो वो सर टाइटल बनता है। एंड द टाइटल्स फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज कैपिटल। टाइटल अभी फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अभी हम लोग एक अवार्ड निकालने वाले, सद्दू अवार्ड,
तो सद्दू अवार्ड का अगर किसी को अगर अवार्ड मिला तो उसके पीछे नाम के पीछे सद्दू जो लिखा जाएगा तो वो सद्दू का एस विल बी कैपिटल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, तो sir. सद्दू का एस विल बी कैपिटल। गेटिंग इट? सेम केस अब यहाँ पर क्या लिखा है? दैट्स सर डॉन ब्रैडमैन। दैट्स सर डॉन ब्रैडमैन। सो सर डॉन ब्रैडमैन, इफ यू सी डॉन ब्रैडमैन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। डॉन Yes, का sir. डी, ब्रैडमैन का बी, इट्स अ प्रॉपर नाउन। बट सर क्या था वहां पर? इट्स द Title. टाइटल टू द गिवन टू दैट मैन। वो आदमी को नाम के पीछे उसका दिया गया था टाइटल सर का। सर विविन रिचर्ड्स, सर डॉन ब्रैडमैन, बैट्समैन था बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट वन, सेम केस इफ यू सी हियर, he is Sir Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, S is capital, Tendulkar T is capital. Why? Because Sachin Tendulkar, it's a proper name of a person. ये proper name है बंदे का। And Sir is the title given to that man. वो आदमी को टाइटल दिया गया था, सर सचिन तेंदुलकर को टाइटल दिया गया है सर के नाम का। So Sir's S will be capital. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, ma'am. Sir, I just want to ask, if I'm giving just example, Madam Shinde. So Madam is not a, means it is for respect only. So shall we call before Madam or Shinde Madam? Like Shinde Madam we must say. okay, okay. We must say Shinde Madam, not Madam Shinde, because Madam is not a title. Okay, sir. Okay. Yes. Any doubts? Same case. For example, No, sir. I met Mr. Ajay last week. So if I'm writing here, I met Mr. Ajay last week, I will be capital. Why? First letter letter of of the the sentence. sentence. Second thing, I is alone. Next one, Ajay is what? Proper noun. First letter will be capital. Next one, Mr. M will be capital. Why? Because it's a Title. title. Any doubts? Title. Any doubts? No, sir. Simple सी चीज है. Next one. Now, another one example is there. Very beautiful example. Please pay attention. This is his book. It is his world. Okay. Rule number 7 is saying, this is his book. T is capital. Why? First letter of the First sentence. letter of the sentence. This is his book. Book B is not capital. Why? Common noun. It's a common noun. Can be any book. Common noun. मेरे पास में भी मेरे सैचल में book है, आपके पास में भी book है, उनके पास में भी book है. Book can be any book. Yes or no? It's a common noun. Same case. It is. This is his book. ये इसकी book है. ये लड़के की book है. It's a common pronoun है ये. ये बिल्कुल ही क्या है? Common pronoun है. कोई भी लड़के के बारे में बात कर सकते हैं. For example, it is his mobile. किसका? मुस्तकीम. It is his car. किसकी? जय. It is his bike. किसका? इमरान की. So his मतलब लड़के के लिए यूज करता है. It's a common pronoun. किसी भी लड़के के लिए यूज करेंगे. But it is his world. ये उसकी दुनिया है. दुनिया अपने बाप की है क्या? No. No, sir. नहीं. ये दुनिया किसकी है? जय किसकी दुनिया है? जय दुनिया किसकी है? अंबानी तो बोलना ही मत. ये दुनिया है गॉड की. हम सबकी है, सर. हम सबकी. अरे हम सबकी. अरे हमारे तो खुद का अपन नहीं है. बोले हम सबकी. सो अगर आप लोग देखेंगे तो दुनिया किसकी है भाई? गॉड की है. यस नो? अब गॉड की दुनिया है मींस व्हाट? इट इज हिज वर्ल्ड. यहाँ पे वो जो हिज है वो किसको डिफाइन कर रहा है? वो किसके लिए स्टैंड किया उसने? गॉड के लिए. God. So whenever you are writing anything for God, the first letter will be capital. अगर आप गॉड के लिए कुछ भी लिख रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल रहेगा. फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा. इट इज हिज वर्ल्ड. ये उसकी दुनिया है. किसकी? गॉड की. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ टीचर का एंड गॉड का. हैव अ लुक हियर. इफ आई गो लेट ही विल पनिश मी. If I go late, so I is capital. If ka I capital. Why? First letter of I is First letter of the sentence. Next, if I go late, here I is capital. Why? I is I is alone. If I go late, he will punish me. अगर मैं लेट गया तो वो मुझे punishment देगा. कौन है भाई ये देने वाला punishment? Teacher. Teacher. So teacher कौन है भाई? बहुत बड़ा आदमी है क्या? No. Teacher कॉमन आदमी है. Yes or no? आम आदमी पार्टी से वो. So he will punish me. So he I have used here for the teacher. Common आदमी. He will punish me. Common आदमी. H is not capital. But यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हूं.
If I betray my parents, he will punish me. अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को धोखा दिया तो वो मुझे बहुत मारेगा पकड़ के. कौन है ये वो? गॉड के बारे में बात चल रही है. इफ आई बिट्रे माई पेरेंट्स, God. अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को धोखा दिया तो ऊपर वाला मुझे सजा देगा. ऊपर वाला सजा देगा. तो ऊपर वाला क्या है? ये गॉड है. एंड गॉड इज ओनली वन. एंड उसके लिए क्या लगाया है यहाँ पर? ही. समझा? इसके लिए एच कैपिटल किया है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? गेटिंग इट? गॉड के लिए Yes, बारे sir. में सेंटेंस बोल रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर. दैट्स इट. कहीं पे भी आने दो, फिर वो बीच में भी आएगा तो भी कैपिटल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बोल रहा है, अब जैसे बच्चा है, वो बच्चा क्या बोल रहा है? आई विल कंप्लेन टू हिम. मैं डैड को कंप्लेन करूंगा. अभी दो दोस्त लोग खेल रहे हैं, जय और आरिफ. अब दोनों खेल रहे हैं. जय ने क्या किया? आरिफ को 2-3 मारा और आरिफ के 2-3 गोटा छीन लिया उसने. अब गोटी छीनने के बाद में क्या कर रहा है? आरिफ ने क्या बोला? आई विल कंप्लेन टू हिम. मैं मेरे अब्बा को कंप्लेन करूंगा. तेरे मेरे अब्बा को नाम बोलता है तेरा. सो आई विल कंप्लेन टू हिम. सो देखिए, हिम किसके लिए यूज किया गया है? फादर के लिए. अब दुनिया में फादर बहुत सारे हैं. ये सर, आपके फादर, उसके फादर, मेरे फादर, इनके फादर, सबके फादर. बट आई विल कंप्लेन टू हिम अगर उसने बोला. अभी जैसे कि हमारा जय है, जय ने उसका दिल तोड़ डाला. किसका? कामवाली बाई का. अब कामवाली बाई का जय ने दिल तोड़ने के बाद में कामवाली बाई ने क्या बोली? तू देख रहे जय, मैं उसको कंप्लेन करूंगी उसकी बारगाह में जाके. तो मैं ऊपर वाले को कंप्लेन करूंगी, भगवान को. सो दैट्स व्हाट आई विल कंप्लेन टू हिम. ये भगवान के लिए एच लगा है. समझ में आ रहा है? हिम. समझा? सो ऊपर वाले Yes, के लिए sir. जब कभी हम लोग बात करेंगे, सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. एनी डाउट्स टू एनीवन? No, समझ में sir. आ रहा है? गुड वन. नेक्स्ट वन हियर, रूल नंबर 10. रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए प्लीज. सिंपल इट इज. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, it is a book, it is a tomato, it is silk, it is gold, it is a tiger, it is a cupboard, etc. Now if you see it का I capital है. Why? First letter of the First sentence. letter of the First sentence. letter. Book B is also small. कॉमन नाउन. Common noun. Tomato can be any tomato. Common. टमाटर के बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं, टमाटर कोई भी टमाटर हो सकता है. आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है. So टमाटर, tomato, it can be any tomato. It's a common noun. Next one, silk can be any silk. कपड़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. सोना कहीं पे भी हो सकता है, कोई सा भी सोना हो सकता है क्या नहीं? रंका का सोना, गणेश का सोना, रफिक का सोना, रमय का सोना, इम्मू का सोना, किसका भी हो सकता है. टाइगर कैन बी एनी टाइगर. काशीवाड़ी का टाइगर हो सकता है, मोमिनपुरा का हो सकता है. ये सुनो. नेक्स्ट, कबर्ड कैन बी एनी कबर्ड. इट्स अ कॉमन नाउन. एनी डाउट्स? सो टाइगर इज कॉमन नाउन, कबर्ड कॉमन नाउन. बट अगर मैंने वो टाइगर का कुछ अगर नाम दिया, या फिर अगर मैंने किसी का नाम दिया, तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइगर माई डॉग. अब मेरा कुत्ता जो है उसका नाम है टाइगर. फॉर एग्जाम्पल, मेरा डॉग है. डॉग किसके पास में भी होता है? जय के पास में भी डॉग है, तबरेज के पास में भी डॉग है. डॉग कैन बी एनी डॉग. बट अगर वो डॉग का अगर मैंने कुछ नाम दिया टाइगर, तो टाइगर टी विल बी कैपिटल. ये सुनो, समझा? अभी अपने पास में बिल्ली है क्या नहीं? है ना मिस अस्मा? अब बिल्ली का नाम क्या है? मीना. तो मीना का एम क्या हो जाएगा? एम कैपिटल हो जाएगा. समझा? कैट का सी कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कॉमन नाउन है वो. बट वो मीना का एम कैपिटल हो जाएगा. व्हाई? इट्स अ प्रॉपर नाउन. सेम केस, इट इज टाइगर माय डॉग. ये टाइगर है मेरा कुत्ता. सो इट इज टाइगर. टाइगर का टी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि वो नाम दिया है मैंने कुत्ते को. समझा? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक. इट इज माई बुक. बुक का बी कैपिटल नहीं होगा. इट्स अ कॉमन नाउन. बट इट इज कैम्ब्रिज माई बुक. ये मेरी बुक है. ये दिख रहा है ये सामने आपके, ये कैम्ब्रिज है और ये मेरी बुक है, अंसारुद्देसी. समझा? सो कैम्ब्रिज का सी कैपिटल हो जाएगा. व्हाई? इट्स अ प्रॉपर नाउन ऑफ द बुक, प्रॉपर नेम ऑफ द बुक. सेम केस, आई हैव अ कैट एंड हर नेम इज मीना. मेरे पास में कैट है और उसका नाम है मीना. सो आई हैव अ कैट, आई कैपिटल. व्हाई? First First letter of the sentence. I have a cat. Cat C will not be capital. Cat का C capital नहीं होगा. क्यों? Because it's a Common noun. common कॉमन noun. नाउन. And her name is Meena. So Meena M will be capital. Why? प्रॉपर Proper नाउन. noun. Proper. क्योंकि वो cat का proper noun है. Any doubts to anyone? No, sir. Sir. Any questions? No, No, sir. sir. So this is what exactly for. That's it for today. And if you have any questions, any doubts, you can ask me tomorrow. And please practice at home. And the students who are remaining for the last installment, please pay the fee and clear the fee as soon as possible. All right? We'll see you tomorrow. Cheerio. And go through the recordings and all. Cheerio, sir. And we'll be seeing Yes, you sir. later. Okay? I have spoke to madam and she'll be uploading there. Guys, please join once again.
Next batch, please join once again.